Okay, so this is the question in front of you. I think you can see, you all people. When along with appropriation, reserve is also omitted to transfer. So अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उतने क्वेश्चंस में you have observed that कि sometimes they have omitted interest on capital, sometimes they have omitted interest on drawing, sometimes salary, commission, or sometimes all together. Okay, sometimes we have observed in the question that they have distributed in wrong proportion also. So every time we did it, but this question which is on your screen, this is little bit different. You people are knowing that from net profit we provide interest on capital to the partner, salary to the partner, commission to the partner, and sometimes we keep a part of net profit as a reserve. Okay, and then remaining profit will be distributed among the partners. But in this question you will observe that the reserve has also been omitted. Okay, so how this type of question is to be solved? So just I am going to read the question. You will see. Praveen, Sahil and Ria are partners having fixed capital. So notice it, fixed capital means whatever the adjustment we will do by using the current account only. So having fixed capital of rupees 2 lakhs, rupees 1,60,000 and rupees 1,20,000 respectively. They share profit in the ratio of 3 is to 1 is to 1, 3 1 1, yani 3 by 4, sorry 3 by 5, 1 by 5 and 1 by 5. The partnership deed provided for the following, which were not recorded in the books. Okay, which were not recorded in the books. क्या क्या था नहीं रिकॉर्ड हुआ है? हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. Then salary to Praveen rupees 1,500 per month and Ria rupees 1,000 per month. Per month, whenever it is given, you must be ensure that it should be annual. So to calculate in annual, we have to multiply it by 12. Okay. Now third information is transfer of profit to general reserve 10,000 rupees. It means they have omitted interest on capital, salary to partners, and also reserve is to be transferred also have forgotten or omitted. So net profit for the year ended 31st March rupees 1 lakh ये था जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था. डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज रुपीज 1 लाख. डिस्ट्रीब्यूटेड मींस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ रेशियो नहीं लिखा है तो इसका मतलब जो पहले से रेशियो था 3:1:1. दिस मींस कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ है. बट डिफरेंट क्या है, एरर क्या हुआ कि इस 1 लाख रुपीस में से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए और रिजर्व देना चाहिए, फिर बचे हुए प्रॉफिट को हमें ऐसे बांटना चाहिए 3:1:1 में. लेकिन इसने किया क्या, कुछ ऊपर से तीनों नहीं दिया, डायरेक्टली बांट दिया. अब कह रहे पास रेक्टिफाइंग एंट्री for the above adjustment in the books of accounts or in the books of firm. So I think question you should note it down or you can take a screenshot. You can take, just I am moving for the next slide. So students, you can see on your screen table showing adjustments. So here is the name of partner Praveen, Sahil, Ria and total. Total always be last. So what we have omitted, interest on capital. So first of all we should write profit should be given as, you can write or without writing you can do this. So interest on capital. So interest on capital has been omitted, so it should be given to the partners, and when we do provide interest on capital, so this amount should be credited to partners account. So credited to partners account, which capital or current, it depends on the nature of capital. Okay, just do it credit.
10,000, 8,000, 6,000, because rate of interest was how much? You can see again, rate of interest is 5%. You see, the rate of interest is 5%. So 5% on 2 lakh will be 10,000, 5% on 1,60,000 will be 16 5 80, यानी कि आपका हो जाएगा 8,000, और फिर 6,000 हो जाएगा रिया का 120 पे, राइट। सो हम लोग देखते हैं, ठीक इसी तरह इसने किया होगा। यस, तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैपिटल दे दिया, टोटल आ रहा है 24,000। अब क्या भूल गए हम लोग? सैलरी। तो सैलरी पर मंथ दिया हुआ है, 1500 पर मंथ प्रवीण को दिया है और 1000 पर मंथ रिया का दिया है। तो पहले हम लोग सैलरी को एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। सो 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जस्ट आई एम शोइंग यू हियर 1500 into 12 will be 18,000, ओके। और 1000 पर मंथ था दूसरे का, तो उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,000 हो गया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ 1800 एंड 12,000 दिया हुआ है, राइट। तो अब आ गया टोटल 30,000। यहाँ तक तो हम लोग भूल गए थे। तो ये तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। देखो रिजर्व जो होता है वो पार्टनर को नहीं मिलता है, रिजर्व फर्म के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। पार्टनर्स को जो मिलने वाली चीजें थी वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, जो कि कैपिटल में क्रेडिट होती है। तो टोटल अमाउंट हम हर एक पार्टनर का हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 10,000, 28 और 8,000 इसका, और यहाँ पे 18,000, टोटल 54,000। सो ये 54,000 पार्टनर्स में ऐसे बंटना था, 28, 8 और 18। बट इन लोगों ने किया क्या होगा? 3:1:1 में शेयर कर दिया होगा। तो उसी प्रोपोर्शन में इस अमाउंट को हम उनसे वापस लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे डिविजन ऑफ फर्म्स लॉस। फर्म्स लॉस क्योंकि फर्म जो भी पार्टनर्स को पे करता है वो फर्म के लिए लॉस कहलाता है, ठीक है। सो 54,000 रुपीज फर्म को शेयर करना है, तो 3:1:1 में शेयर करेंगे, मतलब उनसे वापस लेंगे। तो यहाँ पर वापस जब पैसा लेंगे तो उनका कैपिटल कम होगा। क्यों वापस ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम ये बांट चुके थे 54,311 में, और हमें देना कैसे था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन दोनों के रूप में देना था। बट हमने बांट दिया था 311 में, तो जिस प्रोपोर्शन में बांटा था उसी प्रोपोर्शन में वापस लेना है। सो 54,000 को 311 में हमने यहाँ वापस लिया। 32,400, 10,800, 10,800, राइट। तो अब ये वापस लेंगे तो ये हो गया डेबिट। अब टोटल ऑफ क्रेडिट और टोटल ऑफ डेबिट पार्टनर्स का तो माइनस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 28,000 क्रेडिट था, 32,400 डेबिट। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा 4,400 डेबिट आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। फिर यहाँ पर 8,000 क्रेडिट है और 10,800 इनका डेबिट है। तो डिफरेंस निकालने पे 2,800 डेबिट आ रहा है, ठीक। अब इसका यहाँ पे 18,000 जो था क्रेडिट, और सही जो अब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो 10,800, यानी इनको कम मिला था। तो दोनों का डिफरेंस निकालने पे आ रहा है यहाँ पे 7,200, एंड दिस विल बी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है आपका। तो ये तो रहा 54,000 का हिसाब। अब ये बताइए कि अगर जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं किए थे तो जनरल रिजर्व भी तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही बटा होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि जब जनरल रिजर्व दिया नहीं तो वो भी पैसा उनके डिविजन प्रॉफिट में ऐड होकर बढ़ गया होगा। तो वो पैसा भी क्या करना है? हमें उनसे वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए क्या करेंगे? कितना रुपए का रिजर्व था? 10,000। सो एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, लेकिन ये पैसा भी उनके कैपिटल में बढ़ चुका है अर्लियर। सो इसी रेशियो में ये पैसा हम वापस लेंगे। तो 10,000 को 311 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 आ रहा है प्रवीण का, 2,000 आ रहा है साहिल का, और 2,000 रिया का। तो ये तीनों ही डेबिट करेंगे क्योंकि तीनों पैसा वापस लेना है। तो अब टोटल इनको कितना डेबिट था? इन लोग का डेबिट क्रेडिट था, और यहाँ टोटल कितना डेबिट है। अब डिफरेंस निकालेंगे फाइनल। सो नेट इफेक्ट
4,400 यहाँ भी था और 6,000 सॉरी यहाँ भी है, तो टोटल इनका डेबिट कितना हो रहा है 10,400। यहाँ पे डेबिट था 2,800 और यहाँ भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट होता है तब माइनस होता है। तो यहाँ पे 4,800 डेबिट आ रहा है। अब यहाँ क्रेडिट था, यानी इनको इतना पैसा देना था और 2,000 रुपया इनको रिजर्व का जो बढ़ चुका था वो वापस लेना है, तो नेट कितना क्रेडिट हो रहा है इनका 5,200। अब आप चेक करेंगे कि ये 10,000 रुपया इनका ये नेट इफेक्ट रिजर्व में जाएगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होनी है, यहाँ 10,400 डेबिट है, 4,800 डेबिट है, 5,200 क्रेडिट है। तो आप देखो कि क्रेडिट 10,000 ये रिजर्व में, जो कि रिजर्व के नाम से जाएगा क्योंकि किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है, और 5,200 सिर्फ रिया को मिलना है क्योंकि उसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, और इन दोनों लोग को डेबिट कर देंगे। प्रवीण डेबिट होगा और साहिल डेबिट। आपको जनरल एंट्री याद होगा कि रिजर्व के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व करते थे जब ओरिजिनल एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो रिजर्व तो क्रेडिट रहेगा, लेकिन डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्योंकि पार्टनर्स को रिजर्व का पैसा ऑलरेडी मिल चुका था, तो उनसे वापस लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, तो डेट ऑन 1 अप्रैल 2015 और पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर हम लोग करेंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। So Praveen's current account debit, Sahil's current account debit to Riya's current account to general reserve. तो जनरल रिजर्व में 10,000 जाएगा, रिया का अकाउंट 5,200 से क्रेडिट था। अब इट मस्ट बी इक्वल टू डेबिट, तो देखो प्रवीण का कैपिटल डेबिट था वहाँ पे 10,400 से, और साहिल का जो आ रहा था डिफरेंस 4,800। अब इन दोनों को सम करोगे तो 15,200 आएगा और यहाँ भी 15,200। तो एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी and transfer to general reserve. So this is your solution is there. So this is the new one question. Just I am going to read and see. When omission of some items has been made at the time of appropriation and profit has been distributed in wrong proportion. तो देखो यहाँ क्या बता रहा है, अभी तक क्या था कि एप्रोप्रिएशन छूट गया था, साथ में रिजर्व भी इन लोगों ने भूल गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन तो गलत है, साथ में जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 311 था तो 311 में ही बटा था, बट इसने क्या किया यहाँ प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में न बांटकर किसी और रेशियो में बांट दिया। इसका मतलब होल सोल पूरा ही गलत है। जब पूरा गलत होता है तो हमको फिर से पूरा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसमें हम प्रॉफिट को भी टच करते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉफिट सही प्रोपोर्शन में बटा होता है तब तक हम कुछ नहीं करते प्रॉफिट के लिए, सिर्फ उसी पार्ट को टच करते हैं जहां एरर हुआ है। बट इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन भी भूल गए हैं और साथ में जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको भी रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लेट सी द क्वेश्चन। X, Y and Z were partners in a firm on 1st April 2018. Their capital stood at rupees 6 lakhs, 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. तो इतना इतना कैपिटल था, कौन सा कैपिटल है ये नहीं मालूम, फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। और कब था 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग कैपिटल है। As per provision of partnership deed, जैसा कि डीड में लिखा था, फर्स्ट Y was entitled for commission of rupees 12,000 per annum, तो Y को 12,000 per annum कमीशन देना था, राइट। सेकेंड, X was entitled for a salary of rupees 1,200, so 1,200 कैसा था पर मंथ है, तो 1,200 पर मंथ है तो उनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पे कह रहा है कि पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट भी देना था, वो भी कहा गया है। अब लास्ट में कह रहा है कि प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, जो प्रॉफिट बांटना था वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना था। तो कैपिटल रेशियो क्या है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, तो सबका जीरो हटा दो तो बचा क्या 6, 4 और 2, इसको और छोटा करेंगे
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3:2:1 रेशियो हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। Net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 4,22,400, which was distributed equally। देखो यहाँ पे कैसे बटा है, एकदम अच्छे से ध्यान रखो। जो एरर हुआ है, ऊपर का तो एरर है ही, साथ में ये क्या कर दिया, इक्वली शेयर कर दिया। और जबकि शेयर कैसे, किस रेशियो में करना था, कैपिटल रेशियो में। तो ये वाला जो एरर कर दिया है, ये प्रोपोर्शन वाला एरर हो गया। और ऊपर तो सब था, तो यहाँ 3 तक तो चल जाता, लेकिन चौथा भी कर दिया, यानी प्रॉफिट को भी यूज करना पड़ेगा। अब कह रहा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एबव प्रोविजन, यानी जो इक्वली बांटा है बिना ऊपर के चारों या तीनों प्रोविजन जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो देना था, ये सबको दिए बिना डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। अब कह रहा है शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एबव। अब आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जस्ट आई एम मूविंग फॉर द सॉल्यूशन। तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, इसमें दो पोर्शन बनेगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट सी। सो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सो पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी गिवन, लाइक क्या देना था सबसे पहले, कमीशन टू वाई। सो कमीशन टू वाई कितना देना है, 12,000। So 12,000 we had given, then total column we put 12,000. Now it is saying that the salary to X is to be given. How much? So 14,400 per annum, because 1,200 per annum per month was given. So we do multiply it by 12. So we will be getting 14,400. So total column also will be same. Now interest on capital to the partner at the rate of 8%. You know that there are capital 6 lakhs. So 6 lakh into 8% will be 40. फिर 4 लाख था तो 32 आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग 16,000। तो टोटल आपका जो कैपिटल का इंटरेस्ट आया 96,000। अब ये बताओ, इतना तो इन लोगों को बट चुका था, मतलब देना था, सॉरी। अब क्या करना था, इतना देने के बाद जो प्रॉफिट था वो इनको शेयर करना था कैपिटल रेशियो, बट दे हैव डन दिस इन देयर equal proportion. That was totally wrong. So we should provide the correct share of profit also. So now we have to calculate how much divisible profit is remaining. So first total of X is coming 150 and Y is 1 lakhs and Z's 50,000. Sorry. This is profit remaining after allowing commission, salary and interest on capital will be 4,22,400 minus 12,000 minus 14,400 and minus 96,000. ओके, सो आ रहा है आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख आ रहा है, ठीक है। सो इस 3 लाख शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हिच वाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कैपिटल रेशियो। द कैपिटल रेशियो आई हैव कैलकुलेटेड 3:2:1। सो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने कमीशन, सैलरी सब देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब कितना प्रॉफिट बच गया। तो आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ देख लो, मैं आपको एक बार अलग से बता दे रहा हूँ। 4 लाख नेट प्रॉफिट था, 4,22,000। इसमें से हमें माइनस करना चाहिए, पहले कमीशन माइनस करना था। तो कमीशन कितना माइनस हुआ, 12,000। फिर उसको माइनस करना था जो सैलरी दिया हुआ था 14,400, ये कमीशन इनका माइनस हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल तीनों का ऐड करो तो 96,000 आ रहा है। तो 96,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, तो अब जो प्रॉफिट बच रहा है, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, एंड वी पीपल आर नोइंग दैट कि डिविजिबल प्रॉफिट ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 है। कैसे आया, तो मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 कैसे आया। तो कैपिटल दिया हुआ था 6 लाख, जिसको नहीं आया होगा वो ध्यान से समझ लेगा। 6 लाख कैपिटल था, फिर इसके बाद कितना था कैपिटल, 6 लाख, 4 लाख था एक, फिर उसके बाद कितना था 2 लाख। तो देखिए ये आपका कैपिटल था। तो अब यहाँ पर जितने जीरोज है, ये जीरो जितने हैं, आप जीरो हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6। अगर आप जीरो हटा दें तो 6:4:2 बचेगा।
ठीक है। अब इसको और छोटा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 3:2:1, क्योंकि 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो रेशियो 3:2:1 आ गया इनका कैपिटल रेशियो। ठीक है। सो कैपिटल रेशियो 3:1 में इस 3 लाख रुपीस को डिवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बचता है लास्ट में वो सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर किया जाता है, और जो कि कैपिटल रेशियो है इस क्वेश्चन में, तो 3:1 में शेयर कर दिया गया। तो कितना आया, 1,50,000, 1,50,000, टोटल 3 लाख। अब फाइनल टोटल करते हैं हम लोग। सो फाइनल टोटल करते हैं तो आ रहा है यहाँ पर 2,12,400 ऑफ एक्स, 1,44,000 ऑफ वाई और 66,000 ऑफ जेड। टोटल आ गया 4,22,400। अब आप बताइए कि ये 4,22,400 ऐसे तो बढ़ना चाहिए था जो हमने बांट दिया, लेकिन पहले कैसे बढ़ा था? पहले ये 422,400 को इक्वली इन लोगों ने शेयर कर दिया था, जो कि टोटली रॉन्ग था। तो उसी प्रोपोर्शन में पैसा वापस लेंगे। सो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सो 4,22,400 को इक्वल प्रोपोर्शन में वापस लेंगे। तो 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800। सो डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग क्रेडिट और डेबिट का। सो एक्स का आ रहा है 71,600 क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, आप देख लो 2 लाख से स्टार्ट है। यहाँ पर आपका 3,200 क्रेडिट आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट 144 है और डेबिट में 140 शो कर रहा है। और यहाँ पर आपका 66,000 क्रेडिट है बट 1,40,800 डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है 74,800, राइट। तो अब जनरल एंट्री क्या होगा, क्लियर है, Z डेबिट होगा दिस अमाउंट से, X और Y को क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि कैसे इसकी एंट्री होनी है। और देखिए आप लोग, एडजस्टमेंट एंट्री 1 अप्रैल 2019, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, adjustment for commission, salary, interest on capital and wrong distribution of profit, right? So यहाँ तक देखो आप लोग अच्छे से नोट कर लो कैसे हुआ। So when closing capital is given and interest on capital has been omitted, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, ड्राइंग छूट गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये सारी चीजें, तो जनरल क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने सॉल्व भी किए। बट इस क्वेश्चन में भी चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा लिटिल बिट बैक स्टेप एक हो गया है। अभी तक जितना सॉल्व किया सब में ओपनिंग कैपिटल दिया था या तो फिक्स्ड कैपिटल, हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देने का मतलब कि कैपिटल ज्यादातर फ्लक्चुएटिंग ही होता है, ठीक है। और जब क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो आपको पता है कि पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें नोट में लिखवाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, ये मैंने पढ़ाया था। सो यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है on 31st March 2014 the balances in capital accounts of A, B and C after making adjustments for profits and drawings were rupees 1,60,000, 1,20,000 and rupees 80,000 respectively। तो कब का कैपिटल है, साफ साफ देखो लिख रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स। सो प्रॉफिट कब होता है, 31 मार्च को, ठीक है, और ड्राइंग वगैरह एडजस्ट किया जाता है सब 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च का ये कैपिटल दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट वगैरह सब बांटने के बाद का कैपिटल है, तो दिस इज व्हाट क्लोजिंग कैपिटल, ओके। Subsequently it was discovered that the interest on capital and drawings had been omitted। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। तो कैसे हम लोग करेंगे ये हमें देखना है। सो यहाँ पर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 40,000 था। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विथड्रू अ टोटल सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। दोनों ने 24,000 रुपए विड्रॉ किया इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
अगर 24,000 रुपए कर रहा है तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। एंड सी withdrew a total sum of rupees 48,000, ओके, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ए और बी ने 24,000 विड्रॉ किया ईच, और मतलब 24 ए ने भी विड्रॉ किया, 24 बी ने भी विथड्रॉ किया, और सी ने जो किया वो 48,000 विथड्रॉ किया इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ है, और इन लोगों का बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है। तो फार्मूला आप लोग को पता है, द इंटरेस्ट। सर टाइम ओवर हो गया सर। टाइम ओवर हो गया आपका, अभी ज्वाइन है कि नहीं, कनेक्ट है ना? मैम नहीं सर, वो मैम का भी क्लास स्टार्ट होगा थोड़ी देर में ना, 11 स्टार्ट बजे हो से गया है ना? होगा, बाकी लोग चले, 11 बजे बाकी से लोग होना है चले ना? गए हैं सर। यस सर। अरे 11 बज गया है क्या? अच्छा, यस चलिए। सर, काफी लोग चले चले भी गए हैं काफी। अच्छा अच्छा अच्छा,